ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं मूं लङ्घायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. So I welcome all of you for today's class. Somehow I think all of you had come for, you wanted to hear from Srinitay Prabhu, who is your course instructor for advanced Bhagavad Gita classes. But somehow, due to some personal reasons of his health and other engagements, Prabhuji couldn't make it today. So I would request you to tolerate me for the next 45 minutes, 1 hour. I forgot to ask whether this class is in Hindi, English, or both is okay. Shall I speak in which language? प्रभु जी बोथ Both is okay, Prabhuji, Prabhu. okay, Prabhuji speaks in both Hindi, English combined, or Prabhuji speaks only English? Mostly in English and then followed sometime in Hindi also. Okay, okay. So sometimes English, sometimes. 70-30 ratio usually. Okay, okay. I'll try to maintain the ratio. Vikram Prabhu has told the ratio. Okay. So the discussion that was going on in the previous class was about the spiritual world. Shintai Prabhu had given you a detailed description of what is material world, what is spiritual world, where is spiritual world, आध्यात्मिक जगत जिसे हम बोलते हैं वो कहाँ है, उसके डिस्क्रिप्शंस बताए थे प्रभु जी ने. Someone would like to share 1 or 2 points from the last class, what you heard? Any 1 or 2 points from the last class about the spiritual world? प्रभु जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज परमानेंट इटर्नल Eternal. Spiritual world is a permanent place. Yes. Prabhuji, it's free from anxiety, and material world is miserable and temporary. Birth, age, disease, and death are everything is there in material world. And Prabhuji said that in material world there is constantly changing. Material world is Yes. constantly changing. So change is so nice, correct? There should be changes or there should not be changes. Prabhuji, it depends. Material world is a better place because there are a lot of changes. Just like the income tax slab has changed. Everybody is happy about that change. Of course not. There is changes. Different topic. Yeah. So sometimes changes is good. But most of the changes in material world is not according to what we want. And that is Yeah. why one person said very amazing thing to me. The one place where a person can be most happy in the material world, most happy, you cannot be more happy than that place, is called a cinema hall, movie theater. Can someone tell why? You experience maximum happiness in a movie hall. Why? Can someone tell? You are in a virtual world. Yes, everything is going on. Everything is going on with the directions and guidance of a director. अगर डायरेक्टर चाहता है तो लड़का लड़की में प्रेम कभी कभी 2 मिनट में हो जाता है. देखा आपने मूवी के स्टार्टिंग में ही प्रेम हो गया. कभी कभी डायरेक्टर चाहता है तो पूरा मूवी लग जाता है प्रेम होने के लिए. कभी कभी डायरेक्टर चाहता है तो हीरो ऐसे उड़ के घुसा मारता है, 10 गोली मारता है, कुछ नहीं होता है. कभी कभी डायरेक्टर चाहता है तो एक गोली में ही मर जाता है. Correct? So we enjoy that place because we really want a place which works according to what we want, what would be best for us. But material world is miserable because it is not under our control.
And the amazing thing is, the misery is, we want to be the controller. I will tell you one of the proof of spiritual world, which my one of my superior Vaishnavas told me. What is the proof of spiritual world? I will give you a simple proof. आप में से कितनों को अगर मैं बोलूं कि मैं गुलाब जामुन बना रहा हूँ, अ, अपने घर पे आप लोग आएंगे क्या? तो आप में से कितने लोग को इच्छा करेगा आने का? अरे गुलाब जामुन बना रहे हैं प्रभु जी, चलो चलो, प्रभु जी बुला भी रहे हैं, करेक्ट? बट जस्ट इमेजिन, मैं किसी अफ्रीकन व्यक्ति को बोलता हूँ मैं गुलाब जामुन बना रहा हूं, आओगे क्या? गुलाब जामुन, पहले तो उसको ये नहीं समझ आएगा वो खाने की चीज है, करेक्ट? आपको कुछ चीज खाने की इच्छा की, इट इज अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ गुलाब जामुन बिफोर। यस और नो? जैसे छोटा बच्चा है जिसने कभी गुलाब जामुन नहीं खाया, उसको गुलाब जामुन बोले वो थोड़ी आएगा, वो तो टॉफी से आएगा। तो हमें गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही है, हाँ बहुत मजा आएगा, इसका मतलब हमने कभी खाया है ना, इसलिए तो हमको पता है कैसा होगा, मजा आएगा, सॉफ्ट होगा, गोल होगा। बट एक अफ्रीकन व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी गुलाब जामुन नहीं खाया है, वो क्या सोचे, ठीक है गुलाब जामुन बनाया तो बनाया, मैं क्या करूं, बिकॉज उसने खाया नहीं है। फिर सिमिलरली आप सब कितने लोग जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं? कौन कौन जीवन में हमेशा खुश रहना, कौन कौन चाहते हैं कि अगर काम नहीं करना पड़े प्रभु जी, और आ जाए सब पैसा वैसा आ जाए, घर में खाना राशन आ जाए, सुंदर हो जाए, दो चार नौकर चाकर रहें, सब काम हो जाए, खटना नहीं पड़े प्रभु जी फालतू का, तो कितना अच्छा होता है। ये इच्छा होती है कि नहीं? सबकी होती है। लेकिन ये इच्छा आई कहाँ से? ये इच्छा आई कहाँ से? इसका मतलब आपकी एक्सपीरियंस है ना पहले की। अगर आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आपके मन में वो इच्छा कैसे आई? सपोज आप, लेट अस से यू एक्सेप्ट द रियलिटी कि अरे भैया जीवन में खटना ही है, तो मन में कभी कभी इच्छा क्यों आती है कि अरे काश मैं भी अमीर आदमी होता, मुझे भी कम खटना पड़ता। इच्छा आ रही है आनंदमय जीवन की, इटर्नल लाइफ की। दैट मीन्स वी हैव अ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ इटर्नली ब्लिसफुल लाइफ, otherwise this desire can't come. We have had an experience where there was no anxiety, where there was no work, just enjoy unlimited. And that is why what we are looking for in the material world, अगर आप ध्यान से देखें कुछ भी हो रहा है, हॉस्पिटल्स क्यों खुल रहे हैं आप बताइए? क्यों कोई हॉस्पिटल, अरे जब मरना ही है तो हॉस्पिटल खोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, यंग लोगों के लिए हॉस्पिटल समझ भी आता है, कोई बूढ़ा हो गया 80 साल का, उसे हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत है? जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट ना कि बूढ़ा हो गया, मर जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता है, करेक्ट? रिसेंटली मैं एक कथा सुन रहा था, उसमें जो कथा व्यास है हम बता रहे थे कि वो गांव गए और एक बूढ़ी सी औरत से मिले 80 साल की। तो उनको, उन्होंने बोला अरे आप माता जी आप तो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, कैसा है तबीयत? वो बोले का बताएं बेटा, लगता है यमराज का जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था वो खो गया है कहीं। मतलब समझे, यमराज ने जो मेरा डेथ वारंट साइन किया था वो खो गया है। सब कोई मर जा रहा है लेकिन हम नहीं मर रहे हैं बेटा, 80 साल के हो गए। तो इस व्यक्ति ने बोला कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ कमरे के बाहर, थोड़ी देर के बाद आप ये जो करंट का तार है ना, करंट का तार छू दीजिएगा बस, आप अपने आप आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरे सामने मत कीजिएगा नहीं तो मेरे पे आरोप आ जाएगा, मैं चला जाता हूँ बाहर, फिर आप ये करंट के सॉकेट में उंगली डाल दीजिएगा, आपकी इच्छा पूरी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी मरना चाहते हैं हम। मतलब बोलने के लिए सब बोलते हैं कि अरे राम जी हमको बुला लेते तो अच्छा होता, सब ठीक हो जाता, लेकिन अगर उस व्यक्ति को बोला जाइए थोड़ा पहाड़ी से कूद जाइए तो राम जी बुला लेंगे, नहीं 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 ऐसे थोड़ी मरेंगे, बूढ़ा व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। लेकिन अगर मरना ही है तो ये चाहत, ये इच्छा, वेयर डिड दैट डिजायर कम फ्रॉम दैट वी डोंट वांट टू डाई? वेयर डिड दैट डिजायर कम फ्रॉम दैट वी वांट इटर्नल लाइफ, वी वांट इटर्नल हैप्पीनेस? This desire has come, that means we have previous experience, and that place of previous experience is spiritual world, जिसको हम बोलते हैं वैकुंठा। कुंठा मीन्स एंजाइटी, टेंशन, वैकुंठा मीन्स नो एंजाइटी, नो टेंशन। सो इस सब के बारे में आई थिंक प्रभु जी ने डिस्कस किया होगा। अब हम थोड़ा इसके आगे और वैकुंठ के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में चर्चा करेंगे। तो मटेरियल वर्ल्ड आप सबको पता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम सब की जो आत्मा है वो किस चीज से बनी है?
आत्मा किस चीज से बनी है? 3 चीजों से बनी है। सचित आनंद. सचित आनंद. सत चित आनंद, हरि बोल। सत हरि बोल. मीन्स इटर्नल, इटर्निटी, और चित मतलब नॉलेज, और आनंद मतलब हैप्पीनेस। तो हमारा जो आत्मा है वो स्पिरिट, वो सत्य चित और आनंद से बनी है। तो आध्यात्मिक जगत भी जो है, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसका हर कण कण, एवरीथिंग, जैसे बोलता है ना कि मैंने बिल्डिंग बनाई थी सीमेंट से बना है, वैसे आध्यात्मिक जगत किस चीज से बना है? सत्य चित और आनंद से बना है। तो भौतिक जगत किस चीज से बना है? असत, अज्ञान और निरानंद। जरूर. एंड दैट इज वाई आप देखेंगे कि এটা দেখো. अगर कोई भी चीज अगर हम देखते हैं, एक এটাই দেখুন ভেঙে. तो कोई भी चीज अगर हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, तो वो परमानेंट नहीं है। अलग अलग स्टैंडिंग कैपेसिटी होती है, ये बिल्डिंग 1000 साल तक रहेगा, मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है, आदमी की एक्सपायरी डेट होती है, करेक्ट। चीजें चेंज होती रहती हैं। हम चाहते हैं कि हम इसी तरह सुंदर दिखें हमेशा, लेकिन नहीं दिखते हैं। चेहरा बदल रहा है, समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि कुछ भी इटरनल नहीं है। तो ये जगह असत है। और नेक्स्ट क्या है? अज्ञान। वहां चिद है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फुल नॉलेज, और यहाँ पे इग्नोरेंस है, अज्ञान। किसी चीज के हमको आइडिया नहीं है एक्चुअली। आप देखिए साइंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट? एक लाइन में अगर इफ वी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी डोंट नो, वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट। We knew little bit lesser yesterday, we know little bit more today, and we might know little bit more tomorrow, but we really don't know what is the end, because we don't have full knowledge. मेरे को एक फैक्ट पता चला कि हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में 8 मिलियन बैक्टीरिया है, अलग अलग टाइप के, 8 मिलियन। एंड एवरी बैक्टीरिया हैज इज ओन कल्चर। बहुत सारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये इसको खाता है, और खाने के बाद जब पास करता है स्टूल, उसको दूसरा बैक्टीरिया खाता है। तो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होके जी रहे हैं, वो डिपेंडेंट होके। तो हमें कुछ कितना नॉलेज ही है, और साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमें अभी तक 2 या 3 मिलियन बैक्टीरिया के बारे में ही पता चला है, इतना रिसर्च करने के बाद। और सब पता कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। तो एक छोटे से हमारे खुद के शरीर के एक छोटे से पार्ट का भी पूरा नॉलेज हमको नहीं है। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज फुल ऑफ नॉलेज। उसमें कोई भी चीज की अज्ञानता नहीं है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड लास्ट थिंग इज दिस प्लेस इज निरानंद। जैसे भगवान बोलते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो भौतिक जगत का 2 प्रॉपर्टी है, क्या क्या है? दुख आलय। आलय मतलब घर, दुख का आलय। तो कोई बोलेगा कोई बात नहीं प्रभु जी, दुख का घर है तो क्या हुआ, हम दुख में खुशी रहेंगे, हम दुख में ही पड़े रहेंगे? नहीं, आपको दुख में भी रहने नहीं देंगे। अशाश्वतम, दुख से भी लात मार के दूसरा दुख दिया जाएगा। कोई बोल सकता है ना प्रभु जी हम दुखी रहना चाहते हैं भौतिक जीवन में, एक दुख भी आपको नहीं दिया जाएगा, वो दुख भी बदल देंगे कुछ देर बाद। होता है ना कभी कभी, क्या होती है, जैसे किसी के घुटने में दर्द होता है, देखा आपने बड़े बुजुर्गों का, फिर आप जाके पूछते हैं कि माता जी कैसे हैं?" चल रहा है काम, अब तो आदत सी पड़ गई है। देखा आपने, आदत सी पड़ गई है। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? आफ्टर सम टाइम वो भी बदल जाएगा। घुटने का प्रॉब्लम फिर लीवर का चालू हो जाएगा, फिर लीवर के बाद बैक चालू हो जाएगा, बैक के बाद फिर हार्ट फेल होने लगेगा, हार्ट फेल के बाद किडनी डैमेज हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो कुछ ना कुछ चेंज हो। सो देर इज दुखालय एंड देर इज अशाश्वतम, इम्परमानेंस एंड मिजरी ऑल्सो। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, इट इज फुल ऑफ आनंद। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बारे में प्रभु जी ने आप लोग बहुत कुछ बताया हो, क्या है कैसा है। आज हम जो है मूड ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता क्या है, किस तरह का माहौल है। जैसे अगर आप मटेरियल वर्ल्ड के मूड के बारे में पूछे तो एंजाइटी है, क्या होगा, मेरा जॉब रहेगा नहीं रहेगा, ये होगा नहीं होगा। बहुत जेलेसी है, किसी को अच्छा अगर आ जाता है, somebody gets good marks, we become jealous, somebody buys a bigger car, then we become envious, somebody tells something which we don't like to hear, then we become angry. So lust, anger, greed, these are the properties of material world. That what is the underlying property of the spiritual world? So the underlying mood which is everywhere in the spiritual world is seva or service. The
द अंडरलाइंग मूड, कोई कुछ भी कर रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्यों कर रहा है? जैसे अगर मैं मटेरियल वर्ल्ड में बोले, कोई कुछ भी कर रहा है भौतिक जगत में, क्यों कर रहा है? खुद के लिए कर रहा है या खुद से जो कनेक्टेड है उनके लिए कर रहा है? अहम ममेति, अहम मतलब मैं, और ममेति मतलब मेरा, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा कार, मेरी जॉब, या तो मेरा मेरा या तो मैं, है कि नहीं? बट अगर आप आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहां पे केवल इच्छा क्या है? दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। वो दिमाग ही वैसे ही चलता है। भले ही दिमाग नहीं है, वो आध्यात्मिक शरीर है उनका, बट देर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेवा और सर्विस। बट इसके बहुत सारे वेराइटीज हैं, तो इस मूड ऑफ सेवा को, दूसरे के लिए कुछ करना, दूसरे को आनंद देने का प्रयास करना, वही हमको आनंद देता है। इसीलिए हमारा आइडेंटिटी क्या है? हमारा आइडेंटिटी है वी आर जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इफ वी वांट टू बी हैप्पी, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हम कौन है। हम सोल है, जो कि भगवान के अंश है, जो आप सबने सीखा होगा, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सर्वेंट हैं। अब जब हम सेवा करेंगे तब आनंदित होंगे। कोई अगर सोचेगा कि नहीं मैं आध्यात्मिक जगत चला जाऊंगा और वहां जाके मजा आ जाए, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, डोंट ट्राई टू बी हैप्पी। आप सबको समझ आया? ये आध्यात्मिक जगत का मोटो है। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, डोंट ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी। द बाई प्रोडक्ट विल बी यू विल बिकम हैप्पी। दूसरों को सेवा करने का कोशिश, दूसरों को आनंद देने का कोशिश, द बाई प्रोडक्ट इज यू विल बिकम हैप्पी। दिस इज द मूड ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? व्हाट मोर कैन आई डू फॉर यू? देखिए, मटेरियल वर्ल्ड में एक नारा है, ओके, बहुत आध्यात्मिक जगत का नारा है, यू फर्स्ट आई लास्ट। आप आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, किसी की प्लेट में खाना देंगे, पहले वो बगल वाले के प्लेट में देखेगा। भौतिक जगत में भी अगर आप, आपके प्लेट में कोई खाना देता है तो हम तुरंत बगल वाले के प्लेट में देखते हैं, उसको ज्यादा मिल गया क्या? अरे उसको दो ठो लड्डू दे दिया, हमको एक ही दिया। अरे उसको, मेरे को केवल प्लेन राइस दिया, उसको प्लेन राइस और जीरा राइस दोनों दे दिया है, उसको मेरे से पहले दे दिया। और आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे ही होता है। जैसे ही आपके प्लेट में खाना गया, पहले बगल वाले के प्लेट में देखते हैं, क्या देखते हैं पता है? अरे उसको नहीं दिया, मेरे को क्यों पहले दे दिया? अरे उसको कम दिया ना, अरे पहले उसको भी तो दो ना। तो सबको टेंशन है, उसको मिला कि नहीं, उसको मिला कि नहीं, किसी को मिला कि नहीं। अपने थाली की तरफ ध्यान नहीं जाता है, पहले दूसरे के थाली, उसको मिलना चाहिए। भौतिक जगत में भी दूसरे के प्लेट की तरफ ध्यान जाता है, बट क्यों जाता है? कि मेरे को क्यों कम मिला, उसको क्यों ज्यादा मिला। बट आध्यात्मिक जगत में उसको क्यों नहीं मिला, अरे उसको तो दो, अरे उसको देना जरूरी है, अरे मेरे प्लेट से दे दो। सो ये चीज जो सेवा का भाव है, ये आध्यात्मिक जगत का अंडरलाइन प्रिंसिपल है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं कि आध्यात्मिक जगत में कोई भी चीज की जाती है किसी के लिए भी, वो उसकी सेवा के लिए, दूसरे के आनंद के लिए की जाती है, एंड द बाई प्रोडक्ट इज ऑटोमेटिकली यू विल बिकम हैप्पी। यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट। सो यू डोंट, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, डोंट ट्राई टू बी हैप्पी। ये मोटो है, अपने आप आपको आनंद मिलेगा। तो जो मेन जो सेवा के भाव है, भाव मीन्स फीलिंग, जिस मूड में सेवा होती है, सर्विस इन द वैकुंठा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेवा इन द ऐश्वर्य भाव एंड सेवा इन द माधुर्य भाव। ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंस एंड रेवरेंस, एंड माधुर्य मतलब इंटीमेसी एंड लव। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। जैसे अगर आप विष्णु को देखें और कृष्णा को देखें, क्या अंतर है? विष्णु को जब हम भक्ति करते हैं तो भाव कैसा रहता है? व्हाट इज द मूड? विष्णु इज आवर फादर। समझ आ रहा है? ये मेरे मेंटेनर है, प्रोटेक्टर है, भगवान है। समझ आ रहा ना? रेवरेंस, as if God is very great. We worship him in the mood of greatness. But this is called as Aishwarya Bhav, Bhagwan ka. Worshipping in opulence and reverence. So we worship God's greatness. But another mood is Madhurya Bhav. We worship Krishna's sweetness. समझ आ रहा है? Intimacy is more important than reverential. For example, I will give, जैसे विष्णु के सामने कोई भक्त जाता है, क्या सोचता है?
He thinks God is my father, Vishnu is my father, he is my protector. बट कृष्ण के सामने कुछ आते हैं नंद महाराज, तो क्या बोलते हैं? मैं इसका पिताजी हूं, ये मेरा बेटा है। समझ आ रहा है आपको? ना बोथ ऑफ देम द मूड इज टू सर्व, मैं इसको प्रेम करना चाहता हूँ, इसको सेवा करना चाहता हूँ, अपने बेटे को खुश करना चाहता हूँ। बट फॉर विष्णु दिस डजंट वर्क बिकॉज द मूड इज डिफरेंट, जस्ट इट्स जस्ट लाइक फ्लेवर। समझ आ रहा है? जैसे चॉकलेट फ्लेवर होता है, वनीला फ्लेवर होता है, इट्स नॉट अबाउट हाई एंड लो, इट्स अबाउट इंटीमेसी ऑफ रिलेशन। जैसे हमारा रिश्ता हमारे दोस्त के साथ भी होता है, हमारे माता पिता के साथ भी होता है, हमारे पत्नी के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है, और वो हाई लो नहीं होता है, बट फ्लेवर अलग है। क्या हम बोल सकते हैं हमारा जो रिश्ता है हमारे बेटे के साथ और हमारे कलीग के साथ सेम है? नहीं है। करेक्ट? फ्लेवर अलग है। करेक्ट? तो सिमिलरली बिकॉज भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है, भगवान सब आनंद के स्रोत हैं, तो भगवान भी आनंद अलग अलग फ्लेवर में एंजॉय करते हैं। और इन फ्लेवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक, भगवान की महानता, द ग्रेटनेस ऑफ गॉड इज द प्रोमिनेंट थिंग, हाउ ग्रेट गॉड इज, how great he is. He is the God, the generator, he is the operator, he is the destroyer, G-O-D. But the another place, God is worshipped in spiritual world out of intimacy. भगवान से प्रेम और intimacy is more important. The sweetness of God is considered more important than greatness. तो हम इसके बारे में आगे आगे और चर्चा करेंगे। तो एक शब्द आता है संस्कृत में जिसको हम बोलते हैं रस। रस समझते हैं? रस जैसे किसी जूस होता है ना, फल, हम जैसे कल मैं फल खरीदने गया था, मौसम्बी, आई परचेज मौसम्बी, इट्स वेरी ड्राई, आई सेड वेयर इज द रसा? नो रसा। ड्राई मौसम्बी, देन यू सेइंग टेक इट चीपली, टेक इट चीपली। बट इवन इन फल वी वांट रस होना चाहिए। करेक्ट? तो सिमिलरली इस रस वर्ड को इंग्लिश में टेस्ट बोला जाता है या मेलो बोला जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे अगर मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि अगर आप दो तीन सब्जी का मैं आपको लिस्ट बना दूं, जैसे लौकी हो गया, ओके, और एक दो सब्जी हो गए, और थोड़ा सा दाल हो गया, तो आपकी प्रोटीन हो गई। दो ठो रोटी में आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, सब्जी से थोड़ा विटामिन हो गया। तो ये चीज हम जीवन भर खा सकते हैं ना, लौकी की सब्जी, थोड़ा सा दाल और रोटी। फिर हम चेंज क्यों करते हैं? पिज्जा की जरूरत क्या है? क्या सच में शरीर शरीर को पिज्जा की जरूरत है? पिज्जा की जरूरत नहीं। क्या शरीर को सच में आइसक्रीम की जरूरत है? नहीं है। करेक्ट? बट हम क्यों खाते हैं? सच में क्या हम आइसक्रीम खाते हैं शरीर के लिए? नहीं, उससे हमको रस मिलेगा, टेस्ट, वैरायटी। तो सिमिलरली आध्यात्मिक जगत में भी भगवान की जो डीलिंग्स है, द डीलिंग्स विद गॉड इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ सम रसा और मेलो। सिमिलरली इन मटेरियल वर्ल्ड आल्सो वी हैव सम रसा विद आवर कलीग्स। दोस्तों के साथ थोड़ा पीठ थपथपा के बात करते हैं, और यार कैसा है कैसा है। बट बच्चों के साथ वैसे बात करते हैं कि अपने बच्चों के साथ बच्चों को थोड़ा प्रेम दिखाते हैं, थोड़ा गोदी में बैठाया, तुम कैसे हो, ये हो। सिमिलरली पार्टनर के साथ दूसरे तरह का हमारा संबंध होता है, माता पिता के साथ दूसरे तरह का संबंध होता है। करेक्ट? इट्स नॉट सेम। एंड हम इस सबको एंजॉय करते हैं, बट दिस इज मटेरियल रसा। मटेरियल रसा का प्रॉब्लम क्या है? मटेरियल रसा का प्रॉब्लम ये है, या तो थोड़ी देर बाद रस खत्म हो जाता है। देखा है आपने? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नए नए मिलते हैं, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, ओहो हो, चांद सा तुम्हारा चेहरा, और ये भी बोलते हैं कि आपका भी चेहरा किसी किसी के समान। बट कुछ दिन बाद वो चांद का चेहरा सूरज की तरह हो जाता है, बहुत गर्मी देता है, ज्यादा अच्छा नहीं लगता है वो चांद का चेहरा, है ना? तो क्या होता है, कुछ दिन बाद रस ही खत्म हो जाता है, या फिर जिससे रस मिल रहा है वो खत्म हो जाता है कि नहीं? कोई की तो परमानेंट नहीं है। जैसे कभी, जैसे मेरी दादी थी, मेरी दादी के साथ आई हैड वेरी गुड रिलेशनशिप विद माय ग्रैंडमदर, वेरी गुड, लॉट ऑफ लव एंड इंटीमेसी, बट द इंटीमेसी डिडंट गो अवे, माय ग्रैंडमदर वेंट अवे। तो द प्रॉब्लम ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज इधर द रसा, एंड 99% केस में तो आजकल रसा ही चला जाता है। आपने देखा है मम्मी बच्चे का कितना अच्छा रिलेशन होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, टीनेजर हो जाता है, तुम मुझे इंडिपेंडेंस दे दो, तुम ज्यादा मत बोला करो, मेरे रूम में नॉक करके आया करो। आई हैव हर्ड वन क्लास 9 स्टूडेंट पेरेंट्स टेलिंग मी, सर बोलता है नॉक करके आया करो रूम में। 9 क्लास का बच्चा। माँ बाप उसको कहाँ से कहाँ उसको बड़ा किए बचपन से, और अब बोलता है नॉक करके आया करो। तो या तो रस ही खत्म हो जाता है भौतिक जगत में लोगों के साथ। करेक्ट? कब सब मम्मी चाहती है कि बेटा मेरे ही हाथ से खाए,
और मम्मी मम्मी बोले और रोटी लेके आओ के, बट हमेशा वो रस रहता है क्या? बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो भौतिक रस का दिक्कत ये है कि वो एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है, ज्यादा देर चलता नहीं है। जैसे अगर हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं, कितना खा सकते हैं? कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं? शिवम प्रभु, आप शिवम प्रभु जी, एक बार में आप कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं? 20, 30? 2, 3। 2, 3 बहुत ज्यादा खुश हो गए तो 5। तो मटेरियल रस का प्रॉब्लम क्या है कि प्रभु जी, एक तो हम खुद भी लिमिटेड है, उतना ज्यादा रस ले नहीं सकता। अगर कोई मम्मी बोले बेटा मैं सुबह से शाम तुझे अपने हाथों से बना के खिलाना चाहती हूँ, सुबह 7 बजे खिलाना चालू करूंगी, रात 9 बजे बंद करूंगी, तू खाते जाना, क्या बच्चा खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो भौतिक रस का दिक्कत क्या है? इट इज लिमिटेड बाय क्वांटिटी एंड इट इज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड बाय क्वालिटी। क्वांटिटी में भी हम मटेरियल रस एक लेवल से ज्यादा नहीं आस्वादन कर सकते, और क्वालिटी की तो क्या ही बात करें, या तो रस ही खत्म हो जाता है थोड़ी देर बाद, या फिर रस देने वाला ही और जो रस में जो रिश्ता है वही टूट जाता है, लोग बिछड़ जाते हैं। बट हम तो आत्मा है, हमको तो परम आनंद चाहिए, वी वांट इटर्नल हैप्पीनेस, सो दैट इज ओनली पॉसिबल इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। समझ आ रहा है आपको? तो सिमिलरली जिस तरह भौतिक जगत में भी ये रस है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रस है। स्पिरिचुअल रसास, आध्यात्मिक रस, अलग अलग रिलेशनशिप होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसे कोई केवल लाइट का जगह नहीं है कि वहां जाएंगे और शांति मिल जाएगा। नहीं, शांति के लिए इतना मेहनत थोड़ी कर रहे हैं। जो चीज हम यहाँ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, इतनी सारी बाधाएं हैं, क्वालिटी का प्रॉब्लम है, क्वांटिटी का प्रॉब्लम है, वी वांट टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड एंजॉय इट फुली, बट विद गॉड। यस। तो अब हम थोड़ा सा 10 मिनट आध्यात्मिक रस के बारे में चर्चा करेंगे। सो 5 तरह के रस होते हैं आध्यात्मिक जगत। ओके, 5 रसस। तो फर्स्ट रस इज कॉल्ड एज, मैं सबका एग्जाम्पल भी आपको देते चलूंगा। पहला रस होता है जिसको शांत रस बोलते हैं। शांत रस, शांत का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल में लो। तो कुछ आध्यात्मिक जगत के निवासी या जो द पीपल ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, they experience a relationship with Krishna which is neutral, just like the stones in Vrindavan, just like cows. भगवान गाय चरा रहे हैं, कृष्णा इज ग्रेजिंग द काउ, एंड काउज आर जस्ट लुकिंग एट कृष्णा, सो नाइस, यू नो, कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल। कुछ बोल नहीं रहे, बस नोटिस कर रहे हैं भगवान को। सिमिलरली जो वृंदावन के पेड़ हैं अलग अलग, जब कृष्ण जाते हैं तो वो ऐसे धीरे धीरे हिलते हैं ताकि कुछ फ्लावर्स कृष्ण के ऊपर गिर जाए। नाउ अमेजिंग थिंग इज, एक चीज आपको समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत किस चीज से बना है। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ स्पिरिट ओनली। एवरीथिंग इज स्पिरिट। द ट्री इज ऑल्सो स्पिरिट, द स्टोन इज ऑल्सो स्पिरिट। दैट मीन्स स्टोन हैज फुल कॉन्शियसनेस, हु आई एम, व्हाट इज माई आइडेंटिटी, हु इज कृष्णा। वो यहाँ की तरह से मोबाइल की तरह जड़ नहीं है, इट्स नॉट मैटर, डेड मैटर, इट इज फुल्ली कॉन्शियस एंटिटी। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप सभी को पता है कृष्ण की दामोदर लीला, यू नो द दामोदर लीला, where Krishna, did some mischief on the day of Diwali. So actually, Mother Yasoda wanted to make butter and curd for Krishna. So then she put the milk को उन्होंने गर्म करने के लिए रखा, and then Krishna started crying. Why Krishna is crying? कि mother is giving time to the milk, not to me. Then Mother Yasoda took Krishna on her lap, गोदी में ले लिया, and उनको दूध पिलाने लगी। एंड जैसे ही दूध पिलाने लगी तो दूध ने क्या सोचा, वहां दूध हो रहा है, वो दूध सोचने लगा, अरे कृष्णा तो माता का ही दूध पी ले रहे हैं, तो पेट भर जाएगा, मेरे को तो नहीं पिएंगे, ऐसे जिंदगी का क्या फायदा, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो दूध ऐसे उबल के ऊपर आने लगा और बोला कि मैं आग में चला जाता हूँ, बेटर टू कमिट सुसाइड, व्हाट इज द यूज ऑफ लाइफ इफ कृष्णा विल नॉट ड्रिंक मी। सो इमीडिएटली जैसे दूध आने लगा, मदर यशोदा भागी, अरे अरे अरे, कृष्णा को नीचे रख दी, दूध गिर जाएगा। एंड कृष्णा बिकेम सो एंग्री, ओ मेरे को नीचे रख दिया दूध पिलाते पिलाते बीच में। एंड कृष्णा को बहुत गुस्सा आया, तो कृष्णा ने सब मटकी वटकी तोड़ दिया। एंड मदर यशोदा को गुस्सा आ गया कि हाँ तुम ऐसे बदमाशी कर दिया, तो क्या क्या किया उन्होंने, कृष्णा को एक उखल में बांध दिया कि आज तुम्हारा पनिशमेंट है, तुमको बांध के यहाँ पे रखेंगे। तो कृष्णा ने तो बांध दिया, कृष्णा टेंशन में, बट इंजॉय कौन कर रहा है, जिस रस्सी से बांध दिया। करेक्ट, भगवान का एक नाम क्या है,
दामोदर, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब belly, one whose belly is tied with rope, so that rope is feeling so nice. Oh, मैं कृष्ण का सॉफ्ट सॉफ्ट पेट को टच कर पा रहा हूँ, कितना अच्छा है। एंड बाकी सब लोग बोल रहे हैं तू कितना, क्योंकि घर में और भी रस्सी है, सब रस्सी डिस्कस कर रहे हैं, ये रस्सी कोई नॉर्मल रस्सी नहीं है, ये बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए इसको भगवान का कमर बांधने का मौका मिला। और यहाँ तक कि आप सोचिए गोपियां हैं, गोपियां भगवान की कितनी बड़ी भक्त है, हम सोचते हैं गोपीज आर द ग्रेटेस्ट डिवोटीज, बट गोपीज आर फीलिंग कि हमारे जीवन का मेन फायदा नहीं है, असली एंजॉय तो कौन कर रहा है, ये जो भगवान के कुंडल है। क्यों? क्योंकि हमेशा हिलते हैं और भगवान को इधर किस करते रहते हैं। दे आर सो फॉर्चुनेट, एंड गोपीज आर फीलिंग हमको ये मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये कुंडल हमेशा भगवान को इधर पे स्पर्श करते रहते हैं, हम लोग तो खाली दूर से देखते रहते हैं, इंतजार करना पड़ता है कब भगवान मिलने आएंगे। ये कुंडल तो पूरे दिन भगवान के गाल को टच करते रहते हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे कोई सोचेगा अरे इंसान अपने आप को कुंडल से ज्यादा अभागा समझ रहा है, हाउ कैन अ गोपी हु इज अ ह्यूमन बीइंग फील दैट आई एम लेस फॉर्चुनेट देन अ कुंडल, बिकॉज कुंडल भी स्पिरिट है, कुंडल कोई डेड मैटर नहीं है। जैसे फॉर्म अलग है, कुंडल इज ऑल्सो सच्चिदानंद, गोपी is also Sachidanand, cow is also Sachidanand. So this type of rasa that the Kundal is sharing is called as Shanta rasa. Kundal is also a person. Similarly, the rope is also a person. So these are called as शांत रसा। तो बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे बींग्स हैं जिनका रिलेशनशिप भगवान के साथ शांत रस में है। वो भगवान से रेसिप्रोकेट तो नहीं कर सकते, डायरेक्ट बातें नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट आनंद उनको भी पूरा मिलता है शांत रस में, न्यूट्रल फॉर्म में। ओके, सिमिलरली आपने देखा प्रभु जी ने बताया हुआ 3 स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा और भगवान, करेक्ट? प्रभु जी ने बताया इसके बारे में? यस नहीं प्रभु। बताया। ओके, तो तीन तीन फॉर्म में भगवान का साक्षात्कार होता है, रियलाइजेशन ऑफ गॉड। वन इज ब्रह्मन एज द ऑल इनफाइनाइट एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। सेकेंड इज लोकलाइज्ड परमात्मा, की भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। एंड थर्ड इज कृष्णा इज अ पर्सन हु स्टेज इन अ प्लेस कॉल्ड एज भगवान। तो जो भगवान को, जो योगी लोग भगवान को परमात्मा की तरह मेडिटेट करते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में खड़े हैं, उनका भी जो भगवान से रिश्ता है वो कैसा होता है? शांत रस। भगवान उनको देख के मुस्कुराते हैं, वो भगवान को देख के मुस्कुराते हैं, बस। नो पर्सनल डीलिंग, ओनली दैट, एंड दे आर वेरी हैप्पी। उसमें बहुत आनंद आता है, अनलिमिटेड आनंद। ओके, तो पहला रस क्या हो गया? शांत रस। दूसरा रस को हम बोलते हैं दास्य रस। दास्य मतलब सर्वेंट। तो दिस इज रसा ऑफ सर्विटरशिप, जिसमें आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इस रस का क्या, कौन एग्जाम्पल है? सबसे फेमस एग्जाम्पल है हनुमान जी। यस, तो हनुमान जी का जो रिलेशन है राम जी के साथ कैसा है? वो कंधे पे हाथ रखते हैं क्या राम जी के? ऐसे आओ चलो घूमने चलते, नहीं, हमेशा सेवा करना चाहते हैं। एंड कोई सोच सकता है कि अरे सर्वेंट से नौकर की तरह रहना पड़ता है क्या? नौकर की तरह नहीं रहना पड़ता है। सर्वेंट का जो पोजीशन है वो आज जगत में बहुत ज्यादा, टू द एक्सटेंट भगवान भी सर्वेंट बनना चाहते हैं। एवरीबडी नोज दैट पास्ट टाइम व्हेन मदर सीता वाज पुटिंग सिंदूर ऑन हर हेड एंड हनुमान जी केम एंड हनुमान जी आज, अरे व्हाट यू आर डूइंग? तो माता सीता ने सोचा कि अरे क्या, एक तो ये ब्रह्मचारी है, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी, इज नॉट मैरिड, ना लड़की के बारे में जानता है ना वाइफ के बारे में, ऊपर से वानर भी है, ये क्या समझेगा कि मैं सिंदूर क्यों लगाता है? तो उन्होंने एक लाइन में क्या दे दिया उत्तर, कि ये मैं सिंदूर इसलिए लगाती हूँ ताकि राम जी का उम्र लंबा हो, इसको लगाने से उम्र लंबा होता है। तो नेक्स्ट दिन क्या किया हनुमान जी ने? पूरे शरीर में रेड कलर लगा के, राइट इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट वेयर राम जी वर सिटिंग, सारे मिनिस्टर्स वर सिटिंग, ही केम, एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग, एवरीबडी वाज लाफिंग। ये बंदर से और क्या एक्सपेक्टेड थे, देखो मूर्खता करके आ गया, देखो कैसे लाल रंग लगा के सबके सामने ये ना बेवकूफ की तरह आ गया। एवरीबडी वाज लाफिंग एट हिम, क्रिटिसाइजिंग हिम, एक्सेप्ट वन पर्सन, दैट वाज लॉर्ड राम। लॉर्ड राम वाज क्राइंग, सीइंग दैट हनुमान जी को, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है दुनिया से, ऑल ही नोज इज मी, एंड दैट इज व्हाई लॉर्ड राम सेज ऑल आई नो इज हिम।
तो भगवान भी इस तरह सेवा करना चाहते हैं। सिमिलरली हम देखते हैं कि जब विभीषण जी आते हैं, आपको पता है राम जी के पास आते हैं, तो अंदर खबर आती है राम जी के पास कि विभीषण हैज कम, विभीषण हैज कम। तो राम जी कॉल्स फॉर ए मीटिंग एंड राम जी आस्क द एडवाइस ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स, जाम्बवान, सुग्रीव, बाली, सॉरी बाली नहीं, अंगद, ऑल दोस। तो somebody says, अरे मार दीजिए, तुरंत मार दीजिए, आया है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो दूसरे को बोला क्या करना चाहिए, विभीषण आया है। तो क्या बोलते हैं कि अरे इसको, इससे सब इंफॉर्मेशन पहले ले लीजिए, रावण का भाई है ना, सारा इंफॉर्मेशन दे देगा रावण की आर्मी के बारे में, उसके बाद मार देंगे। तो तीसरे ने क्या बोला, तीसरे ने बोला कि राम जी एक काम करते हैं, इसको अपने साथ रखते हैं, ये जो जो बोलेगा ना हम वैसे वैसे इंस्पेक्ट करेंगे कि सही बताता है क्या रावण की आर्मी के बारे में। और इसके पीछे दो आदमी रखेंगे, जैसे ही गलत बोलेगा मार देंगे, जब तक सही बोलेगा तब तक जिंदा रखेंगे और आपसे थोड़ा दूर रखेंगे। तो चौथे आदमी ने बोला, अरे राम जी हम बता रहे हैं, अभी ये बोल रहा है ना शरणागति करने आए हैं राम जी, हमको एक्सेप्ट कर लीजिए, हम आपके भक्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका रावण के साथ झगड़ा हो गया है। ही हैज हैड अ फाइट विद रावण एंड ही इज एंग्री विद हिज ब्रदर, बट द डे यू आर गोइंग टू किल रावण, he will see that my brother is going to die. His affection for his brother will again sprout in his heart, and he will cheat you and will kill you only. Because ultimately भाई कौन है, खून का रिश्ता किसके साथ है, अभी तो गुस्सा है भाई से इसीलिए आ गया है। So he cannot be trusted. So at the end Lord Ram asked हनुमान जी, कि हनुमान जी आपको क्या लगता है। तो one very famous श्लोका of रामायण, Lord Hanuman ji tells that my dear Lord that I know he is your devotee. जब मैं लंका गया था I saw that he is always chanting your name and like that. So तब राम जी, सबने सोचा कि अरे हमने अपना अपना तो राय बता दिया, बट मेन आदमी का राय तो पूछा ही नहीं। देखिए राम जी का ह्यूमिलिटी देखिए, ही इज गॉड, ही नोज एवरीथिंग, he can act independently but still he is taking advice of others. So everybody asked Lord Ram, what do you think, what should be done, what is your desire? And Lord Ram speaks a very, very famous shloka of the Ramayana. Someone can repeat with me, any one of you. Sakrideva prapanno yas. Someone repeat. Rahul, you can repeat. सक्रिदेव प्रपन्नो यस् Tava asmin iti yachate तव अस्मिन् इति याजते dadami abhayam sarvada ददामि अभयं सर्वदा dridha dridha etad vratam mama. दृढा एतत् कृतं मम। तो क्या बोल रहे हैं, सकृद एवा प्रपन्नो यस। सकृद मतलब एक बार, प्रपन्नोयस मतलब जब हाथ जोड़ के आप किसी के सामने झुकते हैं उसको बोलते हैं प्रपन्न, सरेंडर। तो भगवान बोलते हैं एक बार अगर कोई हाथ जोड़ के मेरे सामने झुक के बोल देता है, क्या बोलता है, तव अस्मिन इति याचते। तव मतलब आप, अस्मिन मतलब मैं आपका हूं आज से। तो लॉर्ड इज टेलिंग वन टाइम ऑल्सो इफ समवन टेल्स विद फोल्डेड हैंड इन फ्रंट ऑफ मी दैट माय डियर लॉर्ड आई एम योर्स, then what I do, Lord Ram is telling, dadami, I give him अभयम सर्वदा। अभय मतलब अब उसको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, सर्वदा। समझ आ रहा है। तो ऐसे तो कोई बोलेगा अरे, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि अरे तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं बचा लूंगा, बाद में नहीं। बट देन भगवान क्या बोलते हैं, दृढ़ रे तद व्रतम मम, आज के दिन मैं ये व्रत लेता हूं कि किसी ने एक बार भी अगर मेरे सामने हाथ जोड़ के बोल दिया कि आज से भगवान हम आपके हैं, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये व्रत मैं आज लेता हूँ। और सबको पता है कि राम जी ने एक बार व्रत ले लिया मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वतन न जाए। जब तक राम जी हैं, जब तक ये वचन तो कभी जाने नहीं देंगे। तो फाइनली सब लोग समझ गए, क्या समझ गए, कि राम जी चाहते हैं, अरे विभीषण तो हमेशा मेरा नाम लेता है, मतलब राम जी कह रहे हैं कि एक बार भी कोई नाम लिया तो मैं उसको अभय दूंगा। ये तो हमें, विभीषण तो भगवान का भक्त है। तो विभीषण जी को अंदर बुलाया जाता है। तो जैसे ही विभीषण जी अंदर आ रहे हैं तो राम जी क्या बोलते हैं, आइए लंकेश, बैठिए, आइए लंकेश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लंकेश, लंका ईश, ईश मतलब रूलर, आइए लंका के राजा बैठिए। तो इमीडिएटली हनुमान जी को डाउट हो जाता है, अरे लंकेश बोल रहे हैं,
लंकेश मतलब तो लंका का राजा होता है, करेक्ट। बट लंका का राजा कौन है? लंका का राजा कौन है? रावण। रावण है। बट भगवान किसको लंकेश बोल रहे हैं? विभीषण। इसका मतलब जरूर भगवान रावण को मारने वाले हैं और विभीषण को लंका का राजा बनाएंगे। And फिर हनुमान जी का तो बहुत दिमाग है, ब्रह्मचारी है, इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अरे आपने तो इसको लंकेश बोल दिया, लंका का राजा बना दिया, अगर अभी रावण अगर आ गया कल और हाथ जोड़ के माफी मांग लिया कि भैया माफ कर दीजिए सरकार, गलती हो गया हमसे, आपने तो बोला कि एक बार भी कोई बोलेगा तो आप अभय प्रदान करेंगे, तो अगर रावण ने हाथ जोड़ के माफी मांग लिया तो लंका तो आपने ऑलरेडी दे दिया, मुंह से निकल गया कि लंकेश बनाएंगे किसको? विभीषण को। तो रावण को क्या देंगे? तो भगवान कहते हैं रावण को हम अयोध्या का राजा बना देंगे। अरे आप भूल गए क्या? अयोध्या का राजा तो अपने भाई को बना के आए हैं, भरत को। वो तो सबसे ज्यादा प्रिय है, आप आपका भक्त है। अयोध्या तो उसको दिए ना, तो भरत को क्या देंगे? अरे भरत को हम वैकुंठ का राजा बना देंगे। आई विल मेक हिम किंग ऑफ द होल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का किंग तो आप खुद हैं, आप क्या करेंगे? तो भगवान क्या बोलते हैं? हम तीनों के पैर दबाएंगे। रावण के थोड़ा पैर दबाएंगे, फिर थोड़ा दिन विभीषण के पैर दबाएंगे, और थोड़ा दिन भरत के पैर दबाएंगे। और ऐसे मत सोचिए कोई मूवी का शूटिंग चल रहा है जिसमें डायरेक्टर ने डायलॉग दे दिया है लिख के, इसलिए भगवान बोल रहे हैं। भगवान को पता है कि सच में अगर रावण आ गया तो भगवान सच में उसको दे देंगे अयोध्या और पैर दबाएंगे, क्योंकि भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट कि रिलेशनशिप इन द दास्य रस इज लाइक सर्वेंट इन मटेरियल वर्ल्ड। सर्वेंट मटेरियल वर्ल्ड में उसको खटाओ, मेहनत कराओ। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दास्य रस दोनों साइड से है। भगवान भी दास्य रस करना चाहते हैं, भगवान भी पैर दबाना चाहते हैं अपने भक्त का। बताया जाता है महाभारत के बाद जो घोड़े थे भगवान के, अर्जुन के घोड़े, वो पूरे दिन भागते थे, करेक्ट। तो भगवान रात को जाके घोड़ों का भी पैर मसाज करते थे, क्योंकि ये मेरे भक्त के घोड़े हैं, कल इनको फिर सेवा करनी है, उनको बाम लगाते थे, कहीं कट छट गया है। कैन यू इमेजिन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा मसाजिंग द फीट ऑफ हॉर्सेस? एंड डोंट थिंक कृष्णा इज फ्रस्ट्रेटेड, कृष्णा इज वेरी हैप्पी, बिकॉज दास्य रस मीन्स इन द मूड ऑफ सर्वेंट। तो दास्य रस में जैसे हनुमान जी हो गए, और भी कई सारे भक्त हैं जो भगवान को एक दास की तरह सेवा करना चाहते हैं। एंड भगवान भी उस रस का आस्वादन करते हैं, स्वामी बन के उस सेवा को ग्रहण करते हैं। और कभी कभी समटाइम्स लॉर्ड ऑल्सो वांट्स टू बिकम सर्वेंट। ओके, तो फर्स्ट रस इज न्यूट्रल रसा ऑफ शांत रसा, सेकेंड इज रसा ऑफ सर्विटरशिप और दास्य रसा। अबव दिस नेक्स्ट इज, so servitorship में you have little bit relationship with God, but still there is lot of reverence। हनुमान जी आप देखें, अरे भगवान है, राम जी है, इंटीमेसी उतना ज्यादा नहीं है अभी तक, थोड़ा है, भगवान है, सेवा किया। नेक्स्ट इंटीमेसी इंक्रीजेस वन स्टेप अहेड, एंड दैट इज कॉल्ड एज साख्य रसा और फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल कौन है भगवान के साथ जिनका फ्रेंडशिप है? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन इज कृष्णस फ्रेंड। सिमिलरली सुदामा, मधुमंगल, आपने सुना है इन सब का नाम? भगवान मधुमंगल के प्लेट से उठा के झूठा खा लेते हैं। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, ब्रह्मा जी देख ले रही, ये भगवान कैसे हो सकता है, ये झूठा खा रहा है। लेकिन भगवान उधर, वो दोस्ती चल रही है, दोस्ती में तो सब चलता है, तू मेरे प्लेट से खा, मैं तेरे टिफिन से खाऊंगा, तू मेरे को थोड़ा खिला, मैं तेरे को खिलाऊंगा, तू मेरे पीठ पे चढ़ जा, मैं तेरे पीठ पे चढ़ जाऊंगा, करेक्ट। तो जब भगवान विश्व रूप का दर्शन देते हैं, व्हेन कृष्णा गिव्स द दर्शन ऑफ विश्व रूप to Arjuna, and Arjuna is, oh God, first time Arjuna is seeing that Krishna is the Virat Roop, Krishna is the universal form. And then Arjuna at the end of his prayers, you know what he says? Krishna, please forgive me, मेरे को माफ कर देना, कभी कभी मैं तुमको दोस्त समझ के कंधे पे हाथ रख देता था, कभी कभी हम दोनों खाना खा लेते थे तो मैं तुम्हारे पेट के ऊपर पैर रख के सो जाता था, कभी कभी मैं तुम्हारे बेड पे सो जाता था, तुमको नीचे धक्का दे देता था। अरे कृष्णा, मुझे पता नहीं था तुम इतने बड़े आदमी हो। एंड देन इमीडिएटली कृष्णा इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, ओ यू आर माय फ्रेंड, अगर दोस्त आपकी बढ़ाई करने लगे तो मजा नहीं आता है, दोस्त तो दोस्त होता है कि नहीं? दोस्त क्यों बढ़ाई करेगा? और दोस्त अगर आपको महान समझने लगे, हाथ जोड़ने लगे हर दिन आपके सामने, दोस्त आके तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे महान ये हो, तो देन कृष्णा बिकम डिस्टर्ब, ओ भाई अर्जुन इज स्पॉइलिंग द मूड, यू अंडरस्टैंड, स्पॉइलिंग द मूड। जैसे
चॉकलेट आइसक्रीम में अगर आप टमाटर का चटनी डाल के खाएंगे तो कैसा लगेगा? मर जाएंगे क्या? हम लोग भी think मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। समोसा को अगर वनीला आइसक्रीम में लगा के खाएंगे, मरेंगे तो नहीं, लेकिन मजा आएगा क्या? तो खराब हो जाएगा ना टेस्ट। तो सिमिलरली भगवान का जो फ्लेवर है अर्जुन के साथ, वो दोस्त की तरह है। और दोस्त अगर भगवान की तरह हाथ जोड़ने लगे, तुम महान हो, तुम ये हो वो हो, तो वो दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो इमीडिएटली भगवान अपना विराट रूप दर्शन बंद कर देते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फ्रेंडशिप, सिमिलरली कृष्ण हैज फ्रेंडशिप विद सुदामा। सुदामा आते हैं तो भगवान उनको अपने सिंहासन पे बैठाते हैं, और रुक्मिणी माता जी दौड़ के जाते हैं पानी लाने के लिए, चरण धोने के लिए। बट आके देखते हैं कि पानी की तो जरूरत ही नहीं है। कृष्णा अपने दोस्त को देख के इतना खुश है that कृष्णा इज क्राइंग एंड विद हिज टीयर्स कृष्णा इज बेदिंग द फीट ऑफ सुदामा, एंड कृष्णा टेक्स सुदामा टू हिज ओन बेडरूम। बेडरूम में किसको लेके जाते हैं? जिसको पहचानते नहीं है उसको लेके जाते हैं क्या? बेडरूम में जिससे बहुत गहरा रिश्ता होता है उसको लेके जाते हैं। अपने बेड पे भगवान बैठाते हैं सुदामा को, इधर बैठो, भगवान नीचे बैठते हैं और बातें करते हैं, गप्पे देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड साख्य रसा और फ्रेंडशिप विद कृष्णा। सिमिलरली मधुमंगल, कृष्णा के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वृंदावन में। बलराम जी हैं, सिमिलरली श्री दामा है, मधुमंगल हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज हैं कैसे भगवान उनके साथ फ्रेंड्स की तरह एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट अबव दिस इज वात्सल्य रस और पेरेंटहुड, एल्डरली लव। एक हो गया इक्वल वाला लव, फ्रेंड्स वाला, बट एक होता है पेरेंटल लव। पेरेंटल लव का एग्जाम्पल कौन है? यशोदा माँ। हाँ, तो मसोद माँ यशोदा, नंद महाराज। नंद महाराज के और भी भाई हैं, सनंद, उपनंद, जो कृष्णा के ताऊ जी हो गए। सिमिलरली बलराम जी भी, बलराम जी बड़े भाई है ना, तो बड़े भाई की तरह हमेशा टेंशन लेते हैं, अरे मेरा भाई कहाँ चला गया, अरे मेरा भाई को भूख लगा होगा, कृष्णा मेरे को बिना बताए किधर जाना नहीं, तुम खो जाओगे। कैन यू इमेजिन हाउ फनी इट लुक्स? यू आर टेलिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कि तुम खो जाओगे। बड़े बड़ों को जिसने रास्ता दुनिया में दिखाया है उसको क्या बोल रहे हैं? तुम खो जाओगे, तुम इधर उधर जाना मत, ठीक है, मेरे को बिना बताए। तो जब बलराम जी और कृष्ण जा रहे हैं गाय चराने, तो यशोदा मारी, बलराम तुम बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, बहुत बदमाश है। हाँ ठीक है। तो सिमिलरली भगवान नंगे पैर जा रहे हैं, तो यशोदा मारन क्या बोलते हैं, अरे जूता पहन लो, तुम्हारे पैर में कांटा लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, शेर खा लेगा, डंडा ले लो। और कोई शेर वेर आ गया, डंडा दिखा देना है ना। सो वन क्वेश्चन हियर अराइजेस कि don't these people know Krishna is God? Then why they are speaking like this? Who will tell the answer? भगवान को कौन बोलता है भाई कि तुम खो जाओगे जंगल में? है? और भगवान को भी ऐसे सिर नहीं खुजाते कृष्ण, क्या बोल रहे हो भाई? भगवान वहां पे गीता का लेसन नहीं देते हैं बलराम जी को। आपने गीता नहीं पढ़ी क्या? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूता भाव समन्विता। आई एम द ऑल कंट्रोलर डिवाइन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, हाउ कैन यू टेल मी कि तुम जंगल में खो जाओगे? हैं? छोटा बच्चा समझ लिया क्या? सो इसको बोलते हैं योग माया। योग माया इज नथिंग बट द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। बैकग्राउंड म्यूजिक सुना आपने? बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जरूरी है। अगर कोई मूवी चला दी जाए, जब शूट होती है, देखिए शूटिंग किसने किसने देखी है मूवी की, या शूटिंग के क्लिप्स, बिहाइंड द सीन्स। अगर मैं आपको पूरी मूवी बिहाइंड द सीन्स में दे दूं, शूट किया हुआ क्लिप्स, आपको बोलो मूवी दे दिया, देख लीजिए, मजा आएगा क्या? अरे म्यूजिक होगा, थोड़ा ऐसे कैमरा ऐसे जाएगा, सिनेमेटोग्राफी होगा, म्यूजिक आएगा, डायलॉग्स आएगा, है कि नहीं? सो ये जो बैकग्राउंड है भगवान के साथ रिलेशनशिप का, इसको एक डायरेक्टर है उस मूवी का, उस डायरेक्टर का नाम क्या है? योग माया। जैसे यहाँ पे डायरेक्टर कौन है मटेरियल वर्ल्ड में, उनका नाम क्या है? महामाया, करेक्ट। उनका और एक नाम क्या है? महामाया का क्या नाम है ओरिजिनल नाम? दुर्गा माँ। देवी दुर्गा दुर्गा दुर्गा। देवी। दुर्गा देवी इज द डायरेक्टर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे करवाना है, वो सब बैकग्राउंड में दुर्गा देवी चला रही है। कब कोविड वायरस आएगा, कब जाएगा, कितने लोग बीमार होंगे, कैसे होंगे, सब कुछ समय के ना, इट इज रनिंग विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टाइम। टाइम से दुर्गा देवी पूरे भौतिक जगत को चला रही है, यूजिंग द थ्री मोड्स। व्हाट आर द थ्री मोड्स? थ्री मोड्स, सत्व रज्जु तमो।
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से चला रहे हैं। सिमिलरली माया मतलब, माया मतलब जो कवर कर दे, सिंपल। तो भौतिक जगत में क्या होता है, वी आर स्पिरिट सोल, हम इंजॉय करना चाहते हैं, तो माया हमको कवर कर देता है, तुम स्पिरिट सोल नहीं हो तो क्या हो, तुम ये बॉडी हो। तो हमारे नॉलेज को कवर कर देते हैं, करेक्ट, मेकिंग अस फॉरगेटफुल ऑफ कृष्णा बाय कवरिंग कृष्णा फ्रॉम अस। ओके, तो योग माया भी यही करते हैं। योग मतलब कृष्ण के पास, योग मतलब टू ब्रिंग क्लोजर, योग मिलाना। तो भगवान से मिलाने के लिए, भगवान से पास लाने के लिए माया काम करती है। माया मतलब फॉरगेटफुलनेस। सो व्हाट वी फॉरगेट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट कृष्ण इज गॉड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि अगर भगवान गॉड रहेंगे तो गॉड को आप दूध कैसे पिलाएंगे? और ये मेरा बेटा भूखा है, गॉड बोले पागल है क्या, पूरा दुनिया को हम खाना खिला रहे हैं, हमको दूध पिलाएंगे भाई, ये गजब बात कर रहे हैं, भूखा आदमी है क्या? सो देन वो फ्लेवर भगवान एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो योग माया क्या करते हैं, भुला देते हैं, कवर कर देते हैं। शी कवर्स द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा एंड देयरफॉर व्हाट कम्स अप इज द स्वीटनेस ऑफ कृष्णा। आपको समझ आ रहा है? जितना ग्रेटनेस कवर होता है उतना स्वीटनेस बाहर आता जाता है। अरे ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा भूखा है, अरे टिफिन ले लो, शाम का भी टिफिन ले लो। हमेशा मदर यशोदा को टेंशन रहता है कि क्या खाएगा मेरा बेटा, अरे जंगल चला गया, कब आएगा, पैर में कांटा तो नहीं लग गया। एंड उस तरह सोचते 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 भगवान के बारे में द लव कम्स एज इंटीमेसी और स्वीटनेस। एंड तो ये हो गया वात्सल्य रसा। एंड लास्ट रसा इज माधुर्य रसा, दैट इज द रसा ऑफ conjugal love, just like a husband wife or boyfriend girlfriend. So Krishna has madhurya rasa with Lakshmi ji, है कि नहीं? लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, विष्णु। So he shares the love and relationship of conjugal love, the love between partners. Similarly, Krishna has loving reciprocation with Radharani. He has loving reciprocation with gopis. And इसके बहुत सारे पास्ट टाइम्स एग्जाम्पल है, सभी जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जिसमें ना भगवान लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाते हैं। लक्ष्मी जी को भगवान अपने चेस्ट पे रखते हैं। भगवान विष्णु के चेस्ट में एक गोल्डन हेयर है, वन ऑफ द हेयर इज गोल्डन, और वो गोल्डन हेयर एक्चुअली लक्ष्मी जी है, ताकि हमेशा उनको अपने चेस्ट के पास रखें। तो इस तरह अलग अलग टाइप के डीलिंग्स हैं, जिस तरह हस्बैंड वाइफ के होते हैं और जिस तरह लवर्स के होते हैं उस तरह। सो देर इज शांत रस, न्यूट्रल रसा, देन देर इज दास्य रस, दैट इज सर्विटरशिप, देन देर इज साख्य रस, फ्रेंडशिप, देर इज वात्सल्य रस, पेरेंटहुड, एंड देर इज माधुर्य रस, कॉन्जुगल लव। तो इस पांच, अभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए इसमें कौन हाई है कौन लो है, प्रभु जी कुछ हाई लो नहीं है, अलग अलग फ्लेवर है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि साख्य रस वाला सोचता होगा अरे राधा रानी के साथ तो डांस करते हैं, मेरे साथ डांस क्यों नहीं करते हैं? अरे तुम्हारे साथ डांस नहीं करते, तुम्हारे साथ कुश्ती तो करते हैं। क्या भगवान राधा रानी के साथ कुश्ती करेंगे? नहीं करेंगे। बट भगवान श्री दामा के साथ कुश्ती करते हैं, तो फ्लेवर है। कोई बोलेगा प्रभु जी चॉकलेट आइसक्रीम ज्यादा अच्छा है, कोई बोलेगा बटर स्कॉच अच्छा है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अरे तो फ्लेवर है भाई, है कि नहीं? भगवान सब इंजॉय करते हैं, और जिसे बटर स्कॉच पसंद है उसको क्या लगेगा कि बटर स्कॉच ही बेस्ट है। तो आध्यात्मिक जगत में कभी ऐसे हनुमान जी सोचते नहीं अरे मैं तो राम जी के साथ डांस नहीं कर पाता हूँ, मैं राम जी को अपने हाथ से खाना नहीं खिला, नहीं, वो सेवा करके ही खुश है सर्वेंट की तरह, उस फ्लेवर में ही इज हैप्पी विद हिज ओन बटर स्कॉच फ्लेवर। सिमिलरली मदर यशोदा इज हैप्पी विद हर ओन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऑफ पेरेंटहुड। समझ आ रहा है आप लोग को? और इस तरह के अलग अलग रेसिप्रोकेशन भगवान आध्यात्मिक जगत में करते हैं, जो कि इटर्नल है, जो कभी खत्म नहीं होता है। आपको टेंशन नहीं है रसा चला गया तो कल भगवान नहीं आए गोचारण के लिए, भगवान हमेशा जाएंगे। एंड नव नव रस, एवरी डे इट इज चेंजिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ games Krishna is playing in the spiritual world with his friends. Every day new items he is eating from the hands of his mother. Every day he is taking different services from Hanuman ji. Every day he is going to new places with Lakshmi ji. समझ आ रहा है आपको? इस तरह का, बट डिफरेंस क्या है, जैसे जैसे आप रस में ऊपर जाएंगे आप देखेंगे इंटीमेसी बढ़ते जाता है कि नहीं? न्यूट्रल वाले का भगवान से डीलिंग नहीं है, केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं। दास्य रस में आप सेवा कर सकते हैं बट आप भगवान के कंधे में हाथ नहीं रख सकते हैं, करेक्ट?
बट साख्य रस में कंधे में हाथ भी रख सकता है, भगवान पे चुटकुला भी मार सकते हैं, ए, कैसा लग रहा है कृष्णा को, ये कैसे है ना, भगवान के कंधे पे भी चढ़ सकते हैं। बट वात्सल्य रस इज मोर इंटीमेट, मेरा बेटा, द ओनरशिप ऑफ कृष्णा, ही इज माइन, कृष्णा इज माइन, आई हैव टू प्रोटेक्ट कृष्णा, इज मोर इन पेरेंटल, एंड द हाइएस्ट इंटीमेसी is in conjugal love or Krishna being a partner of with his wife or with his lovers. So flavor में अंतर है, but अगर कोई आपको पूछे then difference क्या है, difference is in intimacy of love. So there are two moods basically, हमने बोला एक ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव, ग्रेटनेस, स्वीटनेस। तो वैकुंठ में ऐसे ग्रेडेशन है, सबसे पहले ब्रह्म ज्योति है, देन वैकुंठा प्लैनेट स्टार जहाँ पे विष्णु रहते हैं, एंड विष्णु के बाद आता है द्वारका धाम, द्वारका सॉरी अयोध्या, जो राम जी का प्लेनेट है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग अलग प्लैनेट्स हैं, जहाँ पे राम जी का अलग प्लेनेट है। देन देर इज द्वारका, कृष्णा लिव्स एज अ किंग, समझ आ रहा है। देन देर इज गोलोक वृंदावन, द अल्टीमेट प्लेनेट, द हाईएस्ट प्लेनेट। तो इन सब प्लैनेट्स में अंतर क्या है, सब जगह ना दिट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड ओनली, सच्चिदानंद ओनली, बट द डिफरेंस इज इंटीमेसी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं इंटीमेसी बढ़ते जाता है, समझ आ रहा है आपको। राम जी को आप कभी देखेंगे नहीं कि राम जी डांस कर रहे हैं किसी के साथ, बट कृष्णा एंजॉयस माधुर्य रसा, राम जी एक पत्नी व्रता बस। सिमिलरली राम जी को आप मतलब वो आप समझ रहे हैं ना, द रसा इज ग्रेजुअली इंक्रीज, बट विष्णु लोक का ग्रेट ऑ एंड रेवरेंस, ही इज गॉड, दे आर ऑलवेज वर्शिपिंग, सिंगिंग द ग्लोरीज, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। वृंदावन में भगवान को कोई प्रणाम नहीं करता है, इसको क्या प्रणाम करना है, ये तो हम लोग के साथ घूमता है। बट वो रिलेशनशिप इसलिए है बिकॉज दे हैव सो मच लव फॉर गॉड विच दे हैव डेवलप्ड, एंड दैट इज व्हाई दे कैन कम सो क्लोज। करेक्ट। जिससे जिसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, हम कभी उसके ज्यादा पास जाएंगे क्या, नहीं, क्रिटिसाइज करेगा, झमेला करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस इन द moods of spiritual world, different gradations of spiritual world. Okay, so if somebody asks you what is difference between Vishnu and Krishna, I heard a very good answer. You know, Vishnu is God, Krishna is not God. Krishna is the source of God. So simple है, विष्णु इज अ ऑफिशियल पर्सन। ऑफिशियल समझ रहे हैं, कंपनी में जाके आप किसी से मिलते हैं तो कंपनी के चेयरमैन से मिलते हैं, बट उसके घर पे जाके मिलते हैं तो यू आर मीटिंग सेम पर्सन बट विद डिफरेंट मूड। सो गॉड कौन है, कृष्ण गॉड है, नहीं कृष्ण गॉड नहीं, विष्णु गॉड है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर इन ऑफिस, इसीलिए उसको ऑफिशियल बड़े आदमी की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, भगवान है भगवान है भगवान है। But when you go beyond that Aishwarya, go to Madhurya, intimacy and sweetness and relationship with God, then you go to Krishna, the Lord Ram, Krishna, like that. There is gradation. And for Krishna, it is highest because Krishna is not God. Krishna is the source of God. Okay, Krishna doesn't work. Krishna just enjoys. Okay, anyone has any question? I think it is already 1 hour. किसी का कोई प्रश्न है? Okay. How many people are there? So many people, huh? 21. Okay. Thank you very much for your time and patience. I hope मैं आपको कुछ समझा पाया। एंड और कुछ प्रश्न है तो आप चिंता से पूछ सकते हैं, जो मैंने उनसे सुना आपको समझाया। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय।